أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
सुभान अल्लाह शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा शान उदी विच आइयां आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ां पाइयां। तो दोस्तान गिरामी कदर चलते हैं हजूर क़िबले आलम कुतुब आलम गौसो ज़मा आलिमी मुबल्लिग़ इस्लाम हजूर सानिए ज़िलज़िल बख्त रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाक मुक़द्दस अरफ़ा वाला बारगाह के अंदर तो आपके सिरसे आरिया के मामूल के मुताबिक ख़त्म ख़ाजगाशी पढ़ा जाएगा। दोस्तों से इल्तमास है, दुआओं का ये मजमू है, कोशिश फरमाएँ कि मिलकर जो मुबारक कलमात जो मुबारक कुरान पाक की दुआएं पढ़ी जाएं साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। तो ये सादत हासिल करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इब्रार साहिब कि आकर ख़त्म ख़ाजगाशी से इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। سورة فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قدر شريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه وأصحابه وسلم. حق سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حق سورة الإخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكاسر الفاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقدر شريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. حقات كلمة شريف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقدر شريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. وهو على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. حقق المشرف. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حق يا عزيز يا عزيز عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز حق يا ودود يا ودود ودود يا ودود يا ودود يا ودود حق يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم حق يا وهاب يا وهاب وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب حق يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حق اللهم يا قاضي الحاجات يا الحاجات يا قاضي الحاجات حق يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات حق يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات حق يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات حق يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض حق يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات حق يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب حق يا رافع الدرجات رافع الدرجات يا رافع الدرجات حق يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين حق يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين حق يا دليل المتهيرين يا دليل المتهيرين يا دليل المتهيرين حق يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا حق يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين حق رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر حق يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين حق تسرى كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق اللهم استرني بسترك الجميل
اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل حق درود شريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم حق آمين. या अल्लाह पाक जरा ख़त्म ख्वाज खान पढ़िया गया इस तरह सारे स्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु बारगाह अदियतम तोहफतम पेश कर रहे हैं अल्लाह उन्होंने बारगाह कबूल और मंजूर अता फरमाओ अल्लाह असन की ज़िक्र ज़कार करने में तौफीक अता फरमाओ या अल्लाह इस मसले के अंदर इस शहर के अंदर जो गिरदो नवाज जितने मुसलमान रहने सारे की सरकार ने तरीके पर ज़िंदगी गुजारने तौफीक अता फरमाओ अल्लाह असन के पैगाम वगैरह पछाड़ने नहीं हिम्मत और तौफीक अता फरमाओ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि सहाबी अजमाइन बेरहमतिक माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब शजाशी पढ़ा जाएगा और ये अल्लाह के उस मकबूल बंदों का जिक्र और तज़किरा होता है कि जिनके मज़ारात पर मेरे रब का हर वक्त करम और आप अल्लाह के नूर की बरसात होती है और फिर जहाँ उनका जिक्र होता है उस महफल वालों पर भी उनके सदके करम हो जाता है। तो जब शजाशी पढ़ा जाए गुजारिश है दो जानों बैठने की कोशिश फरमाएं, आंखें बंद करके अपने अपने मुर्शिद पाक का तसव्वुर करें जो किसी जगह पर बैत नहीं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े का जहन में तसव्वुर रखते हुए ज़बान तालू से लगाकर खफ़ी ज़िक्र सांस के ज़रिए आपने ज़िक्र करना है। जब शजराशी मुकम्मल होगा तो ज़िक्र बिलजहर ऊंची आवाज़ में बुलंद आवाज़ में अल्लाहू का ज़िक्र किया जाएगा। गुजारिश है कि जब अल्लाह के पाक नाम का ज़िक्र बुलंद आवाज़ में किया जाए कोशिश फरमाएँ अपनी आवाज़ को एक दूसरे की आवाज़ से मिलाने के लिए। तो शजाशी पढ़ने के लिए गुजारिश करूँगा मोहतरम सूफ़ी सदाकत हुसैन साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैज़ान हजूर ख्वाजा खाजगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون नक्शबंद आलम नक्शे मुराबा बंद नक्शे चुनाब बंद के गोयन नक्श बंद फजल कर यारा मेरे हाले ज़बों पे रहम कर डाल मुझ आलूदाए सियां पे रहमत की नज़र तुझको अपनी किबरियाई की कसम है बेनियाज मुझ सरापा मासियत पर करदार फदाल बास तुझको देता हूँ तेरे जुदो सखा का वास्ता फजल का बख्शिश का रहमत का आता का वास्ता तेरी रहमत के खजाने में कोई कमी नहीं और तेरे जुदो करम की इंतहा कोई नहीं। मैं कहूँ बेवास्ता किस मुँह से बख्शिश के लिए कुछ वसीले पेश करता हूँ सिफारिश के लिए। या इलाही कर करम पर ज़र्द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते फ़ख्र मौजूदात चाहे दो सिरा के वास्ते इस रसूल बेनज़ीरो बेबदल का वास्ता राजदार खलवत बज़्म-ए-ज़ल का वास्ता। या इलाही रहम फरमा सैयदना सदीक़ अकबर के लिए आशिक़ो दिल इरादा उसने पैगंबर के लिए
हजरत सुलमान फारिस बेरिया के वास्ते, हजरत कासम इमाम औलिया के वास्ते, हजरत इमाम जाफर सादक के सदके में करता तून जाते दायमी कम को दुरे बेबहा बा यजीद बूल हसन बूली फरेम दिया इलाही लाज रख लेन के सदके में मेरी अशर के दिनों सफा मदानवी का साथ हो, उनका दामन मुकद्दस और मारात हो। शाह अब्दुल खालिक को शारिफ रिवागरी ख्वाजा महमूद अजीजान साहिब हुल के नबी मोहतरम बाबा समासी हजरत मीर कलाल मुर्शदान बासफा रोशन जमीरो बा कमाल सदरे बज में नक्शबंदार इफ्सरारो मोसने मिला शहनशाह मजर नवार हो, जिनका पहला कदम और मुंतही का आखिरी शाह बहाउद्दीन सखी बरीमत आफरीम या इलाही वास्ते ख्वाजा अलाउद्दीन के दीन मत पे रहे साबत कदम मस्कीन के हजरत याकूब चरखी और बैदुल्ला शाह हजरत ख्वाजा मोहम्मद जायद आपने दी पना इन नफूस पाक सदके मैं रब्बिला दोज बिने मासियत आलू से दागे गुना या इलाही बख्त सदके में ख्वाजा दुर्वेश के लिए, ख्वाजा मुकंगी और ख्वाजा बाकी बिल्ला के लिए या इलाही वास्ता ले हूँ मैं उस शाह का जिनका रद नहीं किया तूने कभी भी वास्ता, वो तेरे महबूब के महबूब भी हैं, शिदा भी हैं, इश्क अमन में उफानी भी हैं और बाकी भी हैं। कुतुब अक्यू में मिलत शाह अहमद के लिए या इलाही बख्त जदद अफसानी के लिए फरमा सब खतें अस पे क्यों मैं दीन उर्वतुल वुस्का मासरिन शमसुल आरफीन नक्शबंदे सानी उज्जातुल्लाह और जुबैर ख्वाजा अशरफ जमालुल्लाह मर्द अले खैर हजरत ईसा मोहम्मद और फैजुल्लाह शाह हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद और फ़कीर बादशाह किबले आलम जनाब आफज़ी अब्दुल करीम हामले हुक्म शरीयत साहिब हुल के अज़ीम आशनाए सिरे अक़दानाए सिरे ला इला वाक़ फ़िराए की कत फ़कर की जाए पनाम और इम्तियाक ने बुला का ले लिया गोश में जा रहे फिर दोषियों के आलम खामोश में या इलाही रहम फरमाज फरियादिए दीन मोबीन स्वाहिब नूर बसीरत ख्वाजा सूफी नवाबुद्दीन सीना इनका दोल तेल तो इनका गंजीना है, कल्ब साफ इसमें तुर का आईना है, इनकी पेशानी किताबुल्लाह की तफसीर है, इनके ने खुद में गर्मी शबीर है या इलाही रहम फरमा साहिब उदा के वास्ते सूफी बासफा कमरान माओलिया बादशाह ख्वाजा सूफी मोहम्मद असलम अबू मुस्तफा के वास्ते सीना इनका मुस्तफ़ा के इश्क से भरपूर है, दिल मन वो चेहरा रोशन के आई बरसता नूर है, हर तरफ दुनिया में इस हकीकत का ज़हूर है, फैज़ जनाब से एशिया तो का योरो बिनूर नूर है या इलाही बख्शते सदके में महबूब मुस्तफ़ा के लिए सूफी बासफा कमरानुमा औलिया बादशाह ख्वाजा सूफी अरशद महमूद के लिए जनाब के सर पर सजा वलायत का ताज है, दिल मुनव्वर चेहरा रोशन के आई खिलता गुलाब है, जनाब के फैज़े करम का ये आल है, पड़ गए जिस पर नजर हुआ वही माला माल है या इलाही ख्वाज गाने नक्शबंदा की मोहब्बत का रता अशर में भी खुदावन साथ इन्हीं के उठा, इनके सदके में वाजिज दो जहां में सुरखरू बरकरार सबकी दिनों दुनिया में आबरू या इलाही तमाम दुआएं लुत्फ से मकबूल हूँ, जब चले दुनिया से तो तेरी याद में मशगूल हूँ।
हो अल हो अल हो अल्लाह हो अल 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 हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल हो अल हो अल हो अल हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल 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 हो अल्लाह अल हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल हो अल्लाह हो अल्लाह हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब चलते हैं बारगाह खैरुल अनाम की तरफ। सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मर्तबत के अंदर दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाएगा। दस्ताने ग्रामी कदर, दुरूद पाक वो प्यारा वजीफा है, जितनी इबादतें हैं वो सारी की सारी मेरे नबी की सुन्नत हैं। नमाज मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे रब का हुक्म है। रोज़ा मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे रब का हुक्म है। कोई भी इबादत मेरे रब की सुन्नत नहीं है, लेकिन याद रखना एक वजीफा वो भी है जो मेरे अल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह के फरिश्तों की भी सुन्नत है, अल्लाह के नबियों की भी सुन्नत है। वो कौन सा वजीफा है? वो मेरे और आपके नबी पर दुरूद पाक पढ़ना। इसे वास्ते करीम आका फरमाते इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु अलैया मन युसल्ली अलैया, फरमाया ओ मेरे गुलामों जो दुरूद मुझ पर पढ़ता है, जो दुरूद मुझ पर पढ़ता है, अल्लाह उस पर अपनी खास निगाह रहमत फरमाता है। तो कहते हैं ना कि नबी पे जहां तारे दरूद पढ़ते हैं, मलक भी सारे के सारे दरूद पढ़ते हैं। ये जहां तो क्या है, खुदा भी है नातखा उनका, खुदा के सारे नज़ारे दरूद पढ़ते हैं और तमाम दर्द जमाने के दूर होते हैं जब भी दर्द के मारे दरूद पढ़ते हैं। इसी मोहब्बत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारिश करूंगा, जब दुरूद पाक पढ़ा जाए खामोश ना बैठे। सल्लु अलैहि, ये रब का हुक्म है, हर उम्मती का दुरूद पाक पढ़ना ये फ़र्ज है। तो जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ें। तो गुजारिश है ये सादत हासिल करने के लिए मोहतरम मोहम्मद उबैर आबद साहिब के आएँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत, अपने प्यार और ज़ौक़ व शौक़ से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जब दुरूद पाक पढ़ा जाए फिर गुजारिश करूँगा मेहरबानी फरमाकर बुलंद आवाज़ में आंखें बंद करके ज़रूर हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी लगाएं। मोहम्मद उमैर आबद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली
अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन जलवा फिगन हुए हदूर कुफ्र रवाना हो गया जिनके हजूर हो उनका ज़माना हो गया सल्ली अला रसूलिना सल्ली अला मुहम्मदिन शेर के जिक्र ला इलाहा हमें मस्त बना गए हजूर ये दुनिया जो मैं है वे ख्वाब थी आके जगा गए हजूर सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मदिन हक ला हाजन साहब
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो। ज़रा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यारो ये इश्क मुस्तफ़ा की महफिल सजी है और मेरे नबी की ज़ात सैयदा कायनात के बाबा हसनैन करीमैन के नाना की ज़ात वो ज़ात है कि जिनसे सिर्फ नबियों ने प्यार नहीं किया, जिनके साथ सिर्फ सहाबा ने प्यार नहीं किया, जिनके साथ सिर्फ महबूब के गुलामों ने प्यार नहीं किया, बल्कि पूरी कायनात के बनाने वाला। आखिर तक मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरी कायनात को सजाने वाला, इस पूरे बज़म को इसकी रौनक को दोबाला करने वाला, वो खाल के कायनात, माल के कायनात हो के उस करीम रब ने पूरी कायनात के अंदर जिससे प्यार किया वो मेरे और तेरे नबी की ज़ात है। और ये वही इश्क था कि उसी इश्क के अंदर उस पाक रब ने पूरी कायनात को बनाया। उसी का इश्क के अंदर अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा, जाओ मेरे यार की आमद का तज़किरा करो। और इसलिए कहते हैं ना कि जे खालिक ने आका गलड़ा ना होंदा, कसम रब दी दुनिया बनाई ना जाती। और जब शीश ने पूछा था ना, अब्बा हजूर आदम दुनिया से जा रहे हैं, बताएं वजीफा क्या करूं? फरमाया जब रब का नाम ले साथ मोहम्मद का भी जिक्र जरूर करना। फरमाया माजरा क्या है? फरमाया जदू अखा खोलियां सन कोई शय वेखी ना सी, जदू अखा उठा के अर्श की तरफ वेख्या सी, फरमाया रब दी कसम है मैनू जिधर जिधर वेखदा सा मुहम्मद दा नाम सामने आ जाता। जे खालिक ने आका नु गलड़ा ना होंदा, कसम रब दी दुनिया बनाई ना जाती। जे दुनिया दे रैपर ने आना ना होंदा, ये बज़म सोहनी सजाई ना जाती। जे उम्मत दे रैपर निराले ना होंदे, कसम रब दी उम्मत बख्शवाई ना जाती। तो इसी प्यार मोहब्बत के साथ चलते हैं बारगाह खैरुल अनाम की तरफ। तो नात खान आज़ाद से गुजारिश है, टाइम मुख्तसर है, जितना टाइम दिया जाए अपने टाइम के अंदर हज़ूर की बारगाह में हाज़िरी पेश फरमाएं। तो सबसे पहले गुजारिश करूँगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदद सराई के लिए नूरुल आमीन और मोहतरम हाफिज़ हैदर सकलैन साहिब, गुजारिश है आकर अपनी हाज़िरी हज़ूर की बारगाह में पेश फरमाएं। दोस्तों से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा जो जगह खाली है उसको पुर करने की कोशिश करें, आगे आगे हो जाएं ताकि जो बाद में आ रहे हैं वो आसानी से बैठ सकें। मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान हजूर ख्वाजा खाजगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा, कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा।
दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल जेड़े तेरे नाम दियां महफिलां सजांदे ने जेड़े तेरे नाम दियां महफिलां सजांदे ने उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल आका जदों याद करो अपने गुलामां नूं आका जदू याद करो अपने गुलामां नूं साडा भी गुलामां च शुमार होना चाहिदा साडा भी गुलामां च शुमार होना चाहिदा साडा भी गुलामां च शुमार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल सानू यारे गार ने दसया ए दोस्तो सानू यारे गार ने दसिया है दोस्तो कि सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिदा सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिदा सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल हजरत सदीक दे ए दिल दी तमन्ना सी हजरत सदीक दे दिल दी तमन्ना सी यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल हजरत सदीक दे ए दिल दी तमन्ना सी हजरत सदीक दे दिल दी तमन्ना सी यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा यार नाल यार दा मज़ार होना चाहिदा अल्लाह दे
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह यार यार दा मज़ार होना चाहिए। जनाब ऐसे नज़दीक अकबर के यार की क्या अजमत है। खुदा की कसम मेरे करीम आका एक दफ़ा मौज में आए, फरमाया ओ अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। जरा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ईमान से कहता हूँ झोली जो खाली लेकर आए हो ना, उठने से पहले अल्लाह रहमत से भर देगा, अपने करम से भर देगा। फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, फरमाया ए अबू बकर मेरी असल हकीकत मेरे रब के अलावा कोई जान न सका कि मैं कौन हूँ। और इसी वास्ते आला हज़रत ने फरमाया सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। मोहब्बत से कह दे हमारा नबी। जिसको नाज है ना वो मोहब्बत से कहे हमारा नबी। जो गुनाह बख्शवाना चाहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, उलमाए अहले सुन्नत दारुल मोहम्मदिया गौसिया बेरशीफ की पहचान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा साहिब आसम नक्शबंदी साहिब खुश आमदेद। तो मोहब्बत से कह दें सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला। आखिर तक आवाज आनी चाहिए। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हजूर की बारगाह में हाजी लगवानी है। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसी मोहब्बत के साथ मुख्तसर सी आजी पेश करने के लिए गुजारिश करूंगा खित्ता पोठवार के मारूफ सनाखा मोहतरम भाई मास्टर नईम अख्तर नक्शबंदी साहिब गुजारिश है आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजुल हुफ़ाज़ मोहतरम कारी शफीक सुल्तानी साहिब हमारी बज़म की जीनत बने, दिल की अथा करें उसे आपको खुश आमदीद। तो हुज़ूर की बारगाह में अदियनात पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा नईम अख्तर नक्शबंदी साहिब। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तीन अशार नाज शरीफ के और दो अशार मैंने मरतबा शरीफ के पेश करने हैं 3-4 मिनट में। मिल के सदा में शामिल हो जाएं। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, मिल के पढ़ लें। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। कुछ तो उनकी झूमते लब से हो जाएंगे बरी, कुछ तो उनकी
जुम्बशे लब से हो जाएंगे बरी। कुछ सयाकारों को कमली में छुपाया जाएगा, कुछ सयाकारों को कमली में छुपाया जाएगा। दो मनाज़िर शायर ने पेश किए और ये अजीब तर मंजर है। आखिरी शेर नाज़ शरीफ का, दो शेर मैंने मज़बूत की पेश करने, मिलके कह दें सुभान अल्लाह। बड़ा अजीब तर मंजर है कि जब सवारी सैयदा ज़हरा की आएगी हश्र में, तो फिर क्या होगा? हुक्म दे के सब की नजरों को झुकाया जाएगा, हुक्म दे के सब की नजरों को झुकाया जाएगा। सिद्दीक जिसनो कहते ओ यार मुस्तफा, मिलके पढ़ लें। सिद्दीक जिसनो कहते ओ यार मुस्तफा दा, जिस सब तो पहला कीता इकरार मुस्तफा दा, कि इस्लाम लो जरूरत जिस वेले पेश आई, हर चीज लेके आया हो बदार मुस्तफा। माशाअल्लाह। अभी मैं मुख्तसर वक्त के लिए खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ। अल्लामा आसिम नक्शबंदी साहिब आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्लामा आसिम नक्शबंदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम्द व सलात के बाद ज़ीनते महफ़ल, रौनक़े महफ़ल, बज़्म महफ़ल हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा सूफ़ी पीर सुल्तान वासिफ़ महमूद अरशदी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया फैज़ान मदीना सलियाल शरीफ, खुलफ़ाए इज़ाम, नात ख़ानाने श्री लिसा, उलमाए कराम और सामीन ग्रामीय कादर, आज की ये तकरीब सईद बसिलसिला इश्क़ मुस्तफ़ा, जो मोमिन की जान है, जो मोमिन की रूह है, और सिर्फ जान और रूह ही नहीं बल्कि सारी कायनात की जान और रूह है। आपने सुना है बारे दीगर उलमा से कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मशहूर और मारूफ ये आयत करीमा का एक किस्सा है कि ख़बरदार, यानी अल्लाह ने तंबीह फरमाई, यानी दिलों को किसी चीज़ से सुकून नहीं मिलता। नेमतें जितनी अल्लाह ने पैदा की हैं, हर नेमत जिस्म की ज़रूरत है,
लेकिन रूह की ज़रूरत, कल्ब की ज़रूरत, वो भी अल्लाह ने पैदा फरमा दी। उस ज़रूरत को भी जब अल्लाह ने पूरा फरमाना चाहा तो साथ इरशाद फरमाया, जिस्म की ज़रूरत पूरी करनी है तो मैंने दुनिया के अंदर दुनिया की नेमतें पैदा की हैं, और रूह की अगर ज़रूरत पूरा करनी है तो वो मेरे जिक्र के साथ जिक्र करूँगा। अब कौन सा वो जिक्र है कि जिससे दिलों को इत्मीनान मिलता है? यही सुना गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा का जिक्र है, सुबहान अल्लाह खुदा का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जिक्र है, अल्लाहु अकबर ये भी जिक्र है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो ये भी तो जिक्र है, कुरान की तिलावत होती है ये भी तो जिक्र है, नमाज पढ़ी जाती है तो ये भी तो जिक्र है, और सजदे किए जाते हैं ये भी तो जिक्र है, अल्लाह अल्लाह किया जाता है तो ये भी तो जिक्र है। मालूम हुआ अल्लाह ने अपने बंदू को अपना कुर्ब देने के लिए, अपने करीब करने के लिए, अपनी मोहब्बत का इनाम देने के लिए और बख्शिश और मगफरत का इनाम देने के लिए अल्लाह ने जिक्र की मुख्तलिफ सूरतें पैदा की हैं। लेकिन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जिस जिक्र से मोमिन के दिल को इत्मीनान मिलता है, इस जिक्र से क्या मुराद है? तो काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह अश-शिफा बि तारीफ़ हक़ूक़िल मुस्तफ़ा में आप इस करीमा की तौज़ीह बयान करते फरमाया कि जिस जिक्र से अहले ईमान के दिलों को तस्कीन मिलती है, फरमाया वो दो तरह के जिक्र हैं, एक जिक्र मुस्तफ़ा है और दूसरा जिक्र सहाबा है। एक जिक्र मुस्तफ़ा है और दूसरा जिक्र सहाबा है। और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अपने वक्त के मुहद्दिस, आपने इस पर जो तबसरा किया, इसकी जो तौजीहात बयान की, आपने फरमाया कि सिर्फ दिलों को जो इत्मीनान मिलता है, कल्बी जो तस्कीन मिलती है, वो दो तरह के जिक्र रखे गए हैं। एक जिक्र मुस्तफ़ा है और दूसरा जिक्र सहाबा है। फरमाया जब जिक्र रसूल किया जाता है, जिक्र सहाबा किया जाता है, जिक्र अहले बैत अतहार किया जाता है, तो फरमाया फा इन्ना इंदा जिक्र सालिहीन तंजिलुर रहमा, फरमाया जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाती है। तो क्या ख्याल है हजरात, जितने भी अज़कार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी जिक्र है, लेकिन ये जिक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता कि जब तक मोमिन सिद्क़े दिल के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे। सुबहान अल्लाह ये भी तो जिक्र है, अल्लाहु अकबर ये भी तो जिक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी तो जिक्र है। लेकिन इन तमाम अज़कार की जो पहचान है, इन तमाम अज़कार की आशनाई अता करने वाली जो ज़ात है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। तो पता चला उसी मोमिन के दिल को तस्कीन मिलती है जिस दिल के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा हुआ करता है और जिक्र सहाबा हुआ करता है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, जिक्रुल अंबियाहि मिनल इबादति व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सरकार ने फरमाया कि जहां पर अनबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया जाता है तो ये जिक्र सिर्फ जिक्र अनबिया नहीं रहता, बल्कि खुदा की बारगाह में ये बंदगी बन जाया करता है। और जो सालिहीन बनते ही वही हैं जो रसूलुल्लाह की सीरत पर चलते हैं, जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग सीने के अंदर रोशन करके रसूलुल्लाह की एक एक अदा पर जब पहरा देना शुरू हो जाते हैं, वो आम बंदा नहीं रहता, वो खुदा की बारगाह में बुर्गजीदा बंदा बन जाया करता है। तो सरकार ने फरमाया खुदा के उस बुर्गजीदा बंदे का जब कोई बंदा जिक्र करता है तो वो जिक्र फिर रायगान नहीं जाया करता, उस खुदा के मकबूल बंदे का जिक्र करने की वजह से अल्लाह उस जाकिर के पिछले गुनाह माफ फरमा दिया करता है। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह अल्लाह। पीछे वाले भी जिक्र करो, अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र दो तरह के हजरात बात खत्म करते हैं इसी पर। एक जिक्र कुरान है, कुरान का एक नाम जिक्र भी है, और सरकार अलैहिस्सलाम का भी नाम एक जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने ही इस जिक्र को नाजिल फरमाया। कुरान का जिस तरह एक नाम अल किताब है, कुरान का जिस तरह एक नाम अल फुरकान है, इसी तरह कुरान का एक नाम अज जिक्र भी है। फरमाया हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन और रसूलुल्लाह की बारगाह में सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, जअलतु का जिक्रन मिन जिक्री, मेरे महबूब मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया है। ये हजूर का नाम जिक्र है। फमन ज़कर का फ़कत ज़करनी, फरमाया मेरे महबूब जिसने तुझे याद किया उसने मुझ रब को याद किया है। रुक के जुमला देना चाहूंगा, अल्लाह ने जिस तरह कुरान नाज़िल किया और कुरान को जिक्र फरमाया और कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे ली है, और अपने महबूब को जब कायनात के अंदर भेजा तो ऐलान फरमा दिया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे महबूब अल्लाह आपको क्यों लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ने कुरान की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और रसूलुल्लाह की जात की भी अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। आज दुनिया के अंदर जितनी तागूती कुव्वतें हैं, मुसलमानों को ईमान को छीनने के लिए, वो दो ही नेमतों को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि मुसलमान के सीने से कुरान का नूर भी निकल जाए और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग भी गुल हो जाए। लेकिन ये दुश्मन की भूल है, जब तक फर्शे जमीन पर मुसलमान मौजूद है ये कुरान मुसलमानों के सीनों के अंदर भी महफूज रहेगा और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग भी अहले ईमान के सीनों के अंदर रोशन रहेगा। लेकिन मैं यहां पर अर्ज करना चाहूंगा, कुरान का नूर मिलता कैसे है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर मिलता कैसे है। औलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हर एक बंदा चाहता है मुझे कुरान का नूर मिल जाए, कुरान पढ़ूं तो एक सरूर मिले, तस्कीन मिले, रसूलुल्लाह का जिक्र करूं तो तस्कीन मिले। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, कुरान का अगर नूर चाहता है और कुरान के साथ सच्ची वाबस्तगी चाहता है तो आपने फरमाया किसी रहबर की को का हाथ पकड़ना पड़ेगा, किसी पेशवा का हाथ पकड़ना पड़ेगा, किसी रहनुमा का हाथ पकड़ना पड़ेगा, किसी को अपना मुक्तदा बनाना पड़ेगा। तो आपने इरशाद फरमाया पीरे रूमी रा रफीक राहे साज, फरमाया के तरीकत के रास्ते पर चलने के लिए हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आना पड़ता है। तो जब उनके कदमों में बंदा आ जाता है तो अल्लाह ताला उस मोमिन को दिल का सोज अता फरमा देता है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, जितने वाबस्तगाने तरीक़त सलियाल शरीफ हैं, आपको कितनी खूबसूरत रूहानी निस्बत मिली है, कितनी पाकीज़ा निस्बत मिली है। आज ईमान पर डाके डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इस गए गुजरे दौर के अंदर अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ऐसे पेशवा अता फरमाए जो रसूलुल्लाह की ज़हरी शरीयत के भी मुहाफ़िज़ हैं और रसूलुल्लाह की बातनी तरीक़त के भी मुहाफ़िज़ मौजूद हैं। लेकिन ये भी माशाअल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। लेकिन हजरात इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं, कुछ खिजरी लिबास भी पहनने वाले मौजूद हैं इस रास्ते पर। बुजुर्गाने दीन का लिबास ओढ़कर और मीडिया पर बैठकर कुरान की तशरीहात, हदीस नबिया की तशरीहात कर रहे हैं और अपने आप को कौम का मुक्तदा पेशवा और मुअल्लिम तसव्वुर कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, कुरान हर एक को अपना नूर नहीं देता, कुरान उसी को नूर देता है जिस सीने के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग रोशन हुआ करता है। और रसूलुल्लाह की मोहब्बत और कुरान का नूर उस बंदे को उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक मोमिन किसी रूहानी शख्सियत को अपना पेशवा ना बना ले।
अल्लाह ताला ये रूहानी निस्बतें कायम रखे और तादम अजीज़ हमें सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बयान कर रहे थे हज़रत अल्लामा आसिम नक्शबंदी साहब। दोस्तों, अभी नमाज इशा बाजमात अदा की जाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सफ़ें दुरुस्त फरमा लें। ये आपके अकब में बैक साइड पे किबला रुख है, तो उस तरफ आप मुँह कर लें और सफ़ें दुरुस्त कर लें। इंशाल्लाह अभी नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज के बाद इंशाल्लाह महफिल इसी तरह पूरे एहतमाम के साथ जारी रहेगी। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखिएगा।